Hello, am I audible? Hello. Yeah, Yes, Tis, boss. you are Yeah, Tish, you are audible. audible. Yes, Audible, boss. audible. Go ahead. Okay, cool. So let's start today's session. Let me open that part. Okay, so hello everyone. My name is Atish Salgotra, second year BTech Computer Science Engineering student, and I am the executive member of Coach at Partio Kota. You'll get to know what it is. Okay, and along this side, Pratiksha is with me. Hi, Pratiksha. Can you hear me? Yeah, Tish. Hello. Yeah, Tish, you are audible. Hello. Okay, she'll introduce and she'll come. Okay, let's go. As the session grows, you'll get to know everyone in the team. Okay, so we would be the we would be the host of the today's session, and Pratiksha is also with me. Hope everyone is excited about the session. Yes or no? Yes. Yes, boss. Cool. Yes, boss. Okay, okay, Yes, that's boss. great. Cool, cool, cool. You can drop big thumbs up if you want. And I would like to welcome you to the college, and we are going to have a great time. I think. Yes or no? Yes. Yes, yesterday or Yes. even day before yesterday, everyone was saying that yes, I want to learn this, I want to learn that, and the time has come now. Okay, so let's start. Uh, so who we are? We are the RTU coders. Okay, the competitive programming community of UD RTU Kota. So do anyone know what is competitive programming? Any idea about that? No. Yes or no? No. Okay, you will get to know very soon. Okay, we'll explain each and everything in this session. So let's start. I think we should start now. Now, as the question arises, CP होती क्या तो हम बता देंगे आगे about so who we are, a community of coders by passion and by choice learn. Okay, whenever we want to learn something, we should be willing to learn, right? So we in this community we share, grow, and uh, सबको हम बताएंगे कि करते क्या हैं हम actually together to build an environment of coding enthusiasts in the community. See, alone you cannot do everything. You must have heard that if you want to go fast, go alone, and if you want to go far, go together, right? So our motive is to create an impact of building a strong programming community, from problem setters to problem solvers to problem setters. Okay, so problem setters are those you are not familiar with competitive programming. So I think you will get to know when boss will say, okay, this community is an initiative by Abhishek Boss. He's from IT final year. Okay, okay. So what we do, every competitive engineer needs to know programming. So even if you are from civil branch or mechanical branch, you need to code. I think in today's world, even sixth year student is now coding. Yeah, right? And not only to program but to solve real world problems, right? And to solve real world problems, we need to program problem solving skills. What are problem solving skills? Anyone know? Yes or no? What are problem solving skills? No, boss. No responses. Yes. Okay, so I'll get you this. No. These are okay. You'll get to know this, which can be developed by competitive programming. So, as I told you that you will get to know about competitive programming, and therefore the RTU coders provide a very maintained competitive programming environment to learn and grow together. Okay, so let's go ahead. What is programming? So you have anyone have heard about programming? What is programming? Hello.
You जिसको can भी say बताना हो first year. अनम्यूट करें और बोलो. Anyone? A combination of logical statements. You are from computer science student and you don't know what is programming. Boss, I can tell. Hello. A, combin- Anyone? Yes, a boss. combination of bolo. logical statements. So let me tell you. Sir, Programming in simple words. It is just to communicate with the computer. That's it. In simple words. Okay. It is a series of instructions given to accomplish a certain task. हम प्रोग्रामिंग करते क्यों है, हमें नीड क्यों पड़ी प्रोग्राम की? सबसे पहले टू रिड्यूस द टाइम. हम देखो, जब भी हम प्रोग्रामिंग करते क्यों है, सबसे पहले तो ये हो गया, ह्यूमन एफर्ट कम से कम लगना चाहिए, राइट? सो टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, लाइक इफ यू वांट टू ऐड 10 नंबर्स, ह्यूमन, लाइक देखो, अगर आप 10 नंबर ऐड करना चाहते हो, सबसे पहले सारे नंबर लोगे, उसको ऐड करोगे, तो कंप्यूटर क्या करेगा? डायरेक्ट उसको एक हम छोटा सा प्रोग्राम लिख देंगे और डायरेक्टली वो आंसर आ जाएगा डायरेक्टली आपका. तो इंस्ट्रक्शंस जो आप दे रहे हो कंप्यूटर को मस्ट बी रिटन इन अ वे द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड, राइट? सो कौन सी लैंग्वेज विच आर यूज्ड टू राइट दीज इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जो भी आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो कंप्यूटर को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो उसे हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, सो विल मूव ऑन. नाउ प्रतीक्षा विल कंटिन्यू. प्रतीक्षा, आर यू हियर? Yeah. Hello प्रतीक्षा, everyone. कैन यू हियर मी? Hello everyone. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. no, boss. Hello. Am I audible? Yeah. Pratiksha audible. Okay. So my name is Pratiksha Sharma and I am from CSE second year. So अब तक हमने देखा what is programming, a set of प्रतीक्षा, instruction. Yeah, Atish. आर यू देयर? Yeah, Atish. I think तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है नेटवर्क में. Atish is not getting our voice exactly. Yeah. So start करते हैं. So what are programming languages? तो अब तक तुमने Wait, देखा what. Pratiksha. 1 second, wait please. Lokesh, are you free now? हाँ मैं फ्री हूँ. एक बार ना आतिश को कॉल करके बोल दो. हाँ मैं बोलता हूँ. प्रतीक्षा तुम कंटिन्यू करो. Okay. तो हमने अब तक देखा what is programming, a set of instructions. Wait. Yeah. So now we see what are programming languages. So programming languages are the vocabulary and set of grammatical rules for instructing a computer to perform specific tasks. So basically, as we know, we can't interact directly with computer as we interact with a human. So basically, programming language is a way to interact with computer. कि हमें कोई भी अगर इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर को देने हैं तो हमें एक कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं. सो देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, each having a unique set of keywords and a special syntax for organizing प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन. सो यहाँ हम देखते हैं हमारे पास फॉर एग्जांपल C++, जावा, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. तो इनके एक पर्टिकुलर रूल्स होते हैं ग्रामेटिकली और एक स्पेशल सिंटैक्स होता है जिसको हमें फॉलो करते हुए कोड लिखना होता है और अपने इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देने होते हैं जिससे हमें अपना प्रोग्राम का आउटपुट मिले. तो and without knowing the syntax exactly, we can't move further in programming. So to get into the programming, this is the first step to know about programming language and choose any one of these. So move to next slide. Why programming? So apart from your syllabus, why should you do programming?
So the first point is build logical and problem solving skills. Means basically programming teaches us how to solve the problem logically, and it builds our logics and problem solving skills. The second is train mind to be more creative. Means it increase the creativity level of our mind, कि आप कैसे एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को सोच पा रहे हैं, उसको एक क्रिएटिविटी लेवल आपका इंक्रीज होता है माइंड का. थर्ड इज ब्रिंग टाइम मैनेजमेंट, which is very important for competitive programming. And the fourth is crack MNCs have high pay. MNCs means multinational companies like Microsoft, Google, Apple, Amazon. So if you really want to go in MNCs, then you must have to have a good knowledge about programming. So that's why you should go for programming. Move to next slide. So these are some programming languages, that is C, C++, Java, Python, and others like Go, JavaScript, Swift, with having different syntax. So now we'll see the learning resources and various platforms for these languages, and how to submit a solution on those platforms live, कि आपको कैसे उन प्लेटफॉर्म्स पर प्रैक्टिस करनी है, कहाँ से आपको पढ़ना है, उसके लर्निंग रिसोर्सेज क्या है इन लैंग्वेजेस के लिए जो आप चूज कर रहे हैं, और उनकी प्रैक्टिस के सॉल्यूशन आपको कहाँ पर होगा. सो वो हम लाइव देखने वाले हैं विद एग्जांपल. सो नेक्स्ट, निपुण बॉस. या थैंक यू प्रतीक्षा. सो मैं अभी तक पूछना चाहूँगा कि अभी प्रोग्रामिंग के बारे में किसी को कोई डाउट है क्या? अभी अभी अपन ने प्रोग्रामिंग देखा, प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो उससे रिलेटेड अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है अभी. यू कैन ऑन योर माइक एंड आस्क द क्वेश्चन. या नो डाउट्स? कंटिन्यू निपुण आगे. Okay, then I will continue now. So yeah, first of all, we would see how to add two numbers. Just a simple program to add two numbers. Just basically for getting to know how programming works actually. So प्रोग्रामिंग कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम्स. ठीक है, तो एक एल्गोरिदम है, सिंपल एल्गोरिदम, कि हमको कोई दो नंबर को ऐड करना है तो उसको कोई कैसे ऐड कर सकते हैं अपन. ठीक है, तो उसका पहला स्टेप है कि हम लोग वही स्टार्ट करने वाले हैं. तो हम दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे. एक वेरिएबल होगा num1 और दूसरा होगा num2. ठीक है, फिर हम लोग एक तीसरा वेरिएबल लेकर आएंगे सम, जिसमें हम स्टोर करेंगे num1 प्लस num2 की वैल्यू को. ठीक है, so then we will read the values of num1 and num2. We will actually get the values from the user. तो यूजर को हम बोलेंगे कि हमें num1 की वैल्यू दो, num2 की वैल्यू दो, हम आपको सम करके देंगे उनका. ठीक है, द फोर्थ स्टेप इज ऐड टू नंबर्स, यानी कि हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर num1 को प्लस num2 को, और फिर फाइनली हम उसका रिजल्ट को डिस्प्ले कर देंगे. तो एक सिंपल प्रोग्राम था ऐड टू नंबर करने का. इसको हम देखेंगे कि प्रोग्राम इसको लैंग्वेज में हम कैसे लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर में देखेंगे. ठीक है, तो अब बात करते हैं लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज हम कैसे डिसाइड करें. ये इसका भी अपन कोड देख लेते हैं C++ में. यहाँ पर हमने फर्स्ट लाइन जो है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ये कुछ नहीं है, ये एक हेडर फाइल है आईओस्ट्रीम. हेडर फाइल क्या करता है, जो हमारे जितने भी इसमें इनबिल्ट इनपुट्स है, जैसे सी इन है, सी आउट है, इन सबको एक फाइल है ये, वो कंट्रोल करता है इनको. ठीक है, फिर सेकंड लाइन हमारी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी. तो ये क्या एक स्टैंडर्ड है. इसमें क्या है, अगर किसी भी कोई भी अगर नेमिंग है, अपन ने दो एक ही फंक्शन को दो तरह से नेम कर रखा है, तो उसको ये कंट्रोल करता है. ठीक है, फिर सिंपल प्रोग्राम अपन देखते हैं यहाँ पर. इसको अभी आपको ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ये इसको बस आप सिंटेक्स की तरह याद कर सकते हैं अभी. ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, दो नंबर को डिक्लेयर किया, इंट num1 num2. फिर हमने दो इनपुट लिए, सी इन करा num1 num2. फिर हमने एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया सम, जिसमें हमने कर दिया num1 प्लस num2, दोनों नंबर को ऐड कर दिया. एंड देन फाइनली वी हैव आउटपुट दी सम, सी आउट कर दिया हमने सी सम, और फिर प्रोग्राम एंड कर दिया. ठीक है, कैन वी चेंज द स्लाइड प्लीज. दिस इज जावा कोड. ये अभी कुछ देर में आपको धीरे एक्सप्लेन कर देंगे. मूव टू नेक्स्ट स्लाइड.
ऐसा सेम कोड पाइथन में भी हम लिख सकते हैं, इसको भी आपको अभी थोड़ी देर में भूपत बॉस एक्सप्लेन कर देंगे। अब बात कर लेते हैं हम प्रोग्राम करें तो कहाँ पर करें। कोई आईडीई चाहिए, कोई नोटबुक चाहिए, कोई नोटपैड चाहिए, क्या चाहिए हमें उसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ आईडीज है, ये क्या है बेसिकली जितने भी आपके प्रोग्रामर्स हैं ना वो सब इन्हीं को ही यूज करते हैं मेनली। तो C++ के लिए जो बेस्ट बताया जाता है वो है देव C++, कोड ब्लॉक्स और VS कोड। मैं पर्सनली VS कोड को यूज करता हूँ। मैंने स्टार्ट किया था कोड ब्लॉक से और मैंने स्विच कर दिया VS कोड पे। VS कोड का काफ़ी अच्छा UI है, आपको बहुत मज़ा आएगा करने में इसका। अगर आपको स्टार्ट करना, उसकी बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। जावा के लिए है एक्लिप्स एंड VS कोड, और पाइथन के लिए है आइडल, पाइचार्म एंड VS कोड। ये पाइचार्म काफ़ी अच्छी इसका भी IDE है पाइथन के लिए, ठीक है। सो अब हम डिसाइड करते हैं कि हम लैंग्वेज डिसाइड कहाँ से करें, मतलब वेयर टू लर्न फ्रॉम, या कैन वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं कि हम कहाँ से सीख सकते हैं। तो सी के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो यूट्यूब से, अगर आपको मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को क्या है यूट्यूब से पसंद आता है कि कोई वीडियो देख के ही समझ पाता है, किसी को क्या है कि बुक पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है तो बुक से पढ़ लेता है, किसी को आर्टिकल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो वो क्या है वेब से जाके गूगल कर सकता है, आर्टिकल बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं तो उनको पढ़ सकता है, ठीक है। और बाकी जो सबसे मेन होता है वो होता है डॉक्यूमेंटेशन। जैसे सी जिसने लैंग्वेज बनाई उसने उसका डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट कर दिया, तो वहाँ से जाओ, सारा कुछ उसमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है जहाँ जो वो कहीं कहीं भी नहीं मिलेगा, वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होता है डॉक्यूमेंटेशन में। तो अगर सी लैंग्वेज आपको सीखनी है तो उसका जो वीडियो रिसोर्सेज है वो यूट्यूब पर आप जा सकते हैं, सौरभ शुक्ला को सर्च कर सकते हैं, ही इज़ द बेस्ट फॉर सी। और अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो आप या तो हैकररैंक पर जा सकते हैं या गीक्स फॉर गीक्स पर जा सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स एक ऐसी साइट है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। ट्रस्ट में, ये बहुत ही मतलब इतनी अच्छी साइट है, ये आपकी ज़िंदगी सच में ही बदल सकती है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ लैंग्वेज ही नहीं, यहाँ पर आपको सब चीज़ें, जितने भी टॉपिक, कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, आपके कोर्स से रिलेटेड हो या एक्स्ट्रा हो, सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। And W3 School is one of the good site also. For C++, यूट्यूब पे आप जा सकते हैं, कोड विद हैरी सर्च कर सकते हैं। कोड विद हैरी ये बहुत ही अच्छा इन्होंने प्लेलिस्ट बना रखा है C++ का, ये भी बहुत आपको हेल्प कर सकता है। वेब पर वही गीक्स फॉर गीक्स पर आप जा सकते हैं इसके लिए भी, और डॉक्यूमेंटेशन तो सबसे बेस्ट होता ही है। C++ पे जा सकते हैं आप, सर्च कर सकते हैं। ये इसका लिंक अभी आपको थोड़ी देर में ये PDF मिल जाएगी, और इन सबके लिंक्स आपको शेयर कर दिए जाएंगे अभी थोड़ी देर में। पाइथन एंड जावा के अभी आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन कर देंगे अभी आपके सीनियर्स। ओके, थैंक यू निपुण। अभी भूपत बॉस, भूपत। हेलो। हाँ भूपत, पाइथन का बता दो बच्चों को एक बार। हाँ, तो स्लाइड दोबारा ले लो। वेरी फर्स्ट आई विल, कूल, भूपत गो अहेड। हाँ ये वाली ठीक है। हाँ, तो वेरी फर्स्ट आई विल इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज भूपत जहांगीर, CSC थर्ड ईयर स्टूडेंट। ओके, तो अब हम सबसे पहले ये वाला जो स्लॉट है ये पाइथन के बारे में कुछ बेसिक सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहली चीज होती है कि हम पाइथन को सपोर्ट क्यों करें। तो उसके लिए कुछ रीजंस है कि पाइथन जो सीखने में वो सबसे इजी लैंग्वेज होती है। पाइथन को सबसे मतलब इजीएस्ट वे में पाइथन को हम समझ सकते हैं और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा स्टेटमेंट वगैरह ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है ना। और जो पाइथन की लाइब्रेरीज होती है जो जिसमें प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं पहले से, तो वो बहुत रिच होते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई होती है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा कोड लिखने की जरूरत नहीं होती। इसलिए पाइथन में बहुत कम कोड से हम अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम पाइथन को सपोर्ट क्यों करें। और तीसरी चीज़ ये हो गई कि जैसे कोड लिखने में किसी को जोर आता है तो वो कम लाइंस में कोड लिखना चाहे तो वो उसके लिए पाइथन से छोटा कोड शायद ही किसी लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपन, है ना। और चौथी चीज़ ये होती है कि जब हम डेवलपमेंट करना चाहे किसी चीज़ का, तो उसके लिए डेवलपमेंट के लिए पाइथन से बढ़िया कोई लैंग्वेज नहीं होती।
मतलब डेवलपमेंट के लिए आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। और यदि हम पाइथन सीखते हैं तो आगे हम मशीन लर्निंग हो गया, मतलब डेटा साइंस के फील्ड में जा सकते हैं। और पाइथन सीखने के बाद हम वेब डिजाइनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और पाइथन का एक डिसएडवांटेज ये होता है कि पाइथन कॉम्पिटिटिव कोडिंग में जो सी प्लस प्लस का कोड एग्जीक्यूट होने में जैसे 1 सेकंड लगता है, तो पाइथन का कोड एग्जीक्यूट होने में वही 5 सेकंड लेगा। तो ये कोई कोई प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिसपे ये इतना टाइम प्रोवाइड नहीं करते, तो वहाँ पे थोड़ी पाइथन में दिक्कत आती है। और बाकी पाइथन हम सीख सकते हैं, सबसे बढ़िया लैंग्वेज होती है। और पाइथन सीखने के लिए आईडी कहाँ पे हम कोडिंग करें उसके लिए कुछ आईडीज है, जैसे कि पहले निपुण बोस ने बता दिया कि हम जो पाइथन है वहाँ पे पाइथन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक जुपिटर नोटबुक नाम से कोई आईडी होती है, तो वो भी बेस्ट आईडी है पाइथन के लिए। और पाइथन सीखने के लिए कुछ रिसोर्सेज है, जैसे कि हम यदि यूट्यूब से सीखना चाहे तो यूट्यूब पे एक चैनल है टेलिस्को नाम से, तो वहाँ पे भी सीख सकते हैं। वो बढ़िया प्ले लिस्ट बना रखी है उसने भी। और एक कोड भी थेरी नाम से है, तो उसकी भी प्ले लिस्ट बहुत सही है। तो यूट्यूब से ये 2 चैनल रिकमेंडेड करूंगा मैं। और यदि आप वेबसाइट से पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट एक W3 स्कूल्स नाम से है और एक ट्यूटोरियल्स पॉइंट नाम से है। तो ये इन दोनों वेबसाइट से तुम सीख सकते हो पाइथन। बहुत सही डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर रखी है इन्होंने। और बस आई थिंक इतना इनफ है पाइथन के लिए। और कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है पाइथन के बारे में? अनम्यूट करके पूछ सकते हो। चलो, थैंक यू भूपत। लेट्स मूव टू द जावा। आई वुड लाइक टू कॉल धीरज। हाँ, हेलो बस फर्स्ट ईयर में हमारे पाइथन का कोई रोल रहेगा क्या सीएस ब्रांच में? भूपत बॉस। नहीं नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ईयर में तो नहीं रहेगा। जैसे तुम डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हो, जैसे 7th सेम में जाओगे ना, तब एक मशीन लर्निंग नाम से कोई सब्जेक्ट होगी, तो वो उसके लिए पाइथन सीखनी जरूरी है। क्योंकि उसमें जो कोड लिखेंगे वो हम पाइथन का लिखेंगे। क्योंकि पाइथन में पहले से बहुत सारी लाइब्रेरीज बनी हुई है, जैसे नमपाई हो गई, ऐसी बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो कि सपोर्ट करती है मशीन लर्निंग वगैरह में। तो उसके लिए हमें ये पाइथन सीखना जरूरी होता है, क्योंकि सी वो प्लस प्लस 7 के पास इतने रिसोर्सेज। हेलो, हाँ, तो वो 7th सेम में टीचर खुद सिखाएंगे हमें या हमें वहां तक पहुंचने से पहले सीख कर जानी है? नहीं, 7th सेम में पहले हमें आइडिया तो थोड़ा बहुत एल्गोरिथम्स वगैरह जो होती है वो तो टीचर बताएंगे। बाकी ये पाइथन वगैरह ये अपने सिलेबस में नहीं है, तो इसको खुद से सीखना पड़ेगा। मशीन लर्निंग की जो एल्गोरिथम्स होती है वो टीचर पढ़ाएंगे अपन को। ओके, थैंक यू। थैंक यू बपुन बॉस। हेलो थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बोलो बोलो। हाँ बोलो। अगर मुझे कोई रिसोर्स हंग्री प्रोजेक्ट लिखना है, यानी कोई रिसोर्स हंग्री कोई प्रोग्राम बनाना है, तो मैं पाइथन यूज करूँ कि सी प्लस प्लस या जावा? देखो, डेवलपमेंट के लिए आई थिंक जो पाइथन है ना वो बेस्ट रहेगी, क्योंकि पाइथन में जो कोड है वो कम लाइन का होगा, है ना, तो वो डिबग आसानी से हो जाएगा, है ना। और नहीं, डेवलपमेंट के लिए हाँ, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि जो मेरा कोड है, मेरे जो रिसोर्सेज है, जैसे कि मेरे पास एक पावरफुल सीपीयू है, तो उसका यूज करें, तो इसके लिए कौन सी लैंग्वेज? पाइथन ही बेटर रहेगी। और ओके जावा ओके जावा भी सही है, क्योंकि जो लाइब्रेरीज है वो जावा और पाइथन के पास सबसे बेस्ट और अच्छी लाइब्रेरीज है, तो उनकी हेल्प से अच्छा डेवलपमेंट कर सकते हैं हम। ओके बॉस, थैंक यू। ओके, हेलो एवरीवन। ओके धीरज बॉस। Yeah. Okay, boss. So hello everyone. My name is Dheeraj Bhakchanani and I am ECE second year student. तो मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ स्क्रीन?
हेलो। हाँ धीरज। नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंट नहीं कर सकता अभी। ये मेरे को करनी है इसलिए। अच्छा, अपनी करनी है, ठीक है, हाँ, यू हाँ कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके ओके। यार दिख रही है? हेलो। हाँ हाँ, दिख रही है। ओके ओके। तो फर्स्टली जावा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं, जावा क्या है। यानी कि जावा में क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि है ना आप पाइथन में यानी कि 2 लाइन का कोड लिखते हो तो जावा में आप 5-6 लाइन में चले जाते हो। सो मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि जावा एक अच्छी लैंग्वेज यानी कि है लिखने के लिए, बट इट इज़ गुड फॉर यानी कि अपन आराम से यानी कि ना अगर अपन लिखना चाहे ना इसको, सो बहुत ही अच्छी यानी कि ना आई थिंक बहुत अच्छी यानी कि लैंग्वेज है अगर अपन लिख पाए इसको। सो जावा कैसे स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट फर्स्ट टॉपिक ये होता है कि हम अपन जावा सीखे कि और ना क्या होता है जावा। सो फर्स्टली जावा इज अ पावरफुल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको अपन डेवलपमेंट में भी यूज कर सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं, और बिग डेटा में भी यूज कर सकते हैं। तो बटली पर है ना अभी इंडस्ट्रीज बहुत ग्रो हो गई है, जो सब पाइथन में स्विच हो गए, बट जावा में अभी भी एंड्रॉयड प्रोजेक्ट चलते हैं अभी भी। तो जावा अपन यानी कि कैसे सीख सकते हैं और उसके क्या क्या यूजेस है। सो सीख तो अपन यानी कि ना बहुत बढ़िया जो ना कोर्स है अपनी कक्षा का है। वो आपको जावा प्लस डी एस प्लस एल्गो ये तीनों चीजें सिखा देगा। और ये मैंने पर्सनली सारी वीडियोस दे रखी है इसकी। अ, और आपको ये जावा बेसिक से एडवांस लेवल तक सिखा देगा ये सारी वीडियोस है इसकी। एंड देन सेकंड क्वेश्चन आता है कि जावा को अपन किस पे यानी कि ना अप्लाई कहाँ पे लिखे जावा को। सो मैं प्रेफर करता हूँ इक्लिप्स। इक्लिप्स ना एक आईडी होता है कि ना अब लिखे नहीं, दैट्स मीन कि ना हम उसको कहाँ पे एग्जीक्यूट करें। इट्स ऑल अबाउट। सो क्या होता है कि इक्लिप्स में ना भूपन बॉस ने बताया था कि पहले से ही है ना आपके पास क्या है कि सारे प्रोजेक्ट्स पड़े रहते हैं, यानी कि सारी यानी कि फाइल्स जो लिखी हुई है डेवलपर्स ने वो सब कुछ पड़ी रहती है। अब क्या होता है कि ये ना आईडी बनते ही इसलिए कि हमारे इजी के लिए जो हम वो बने हुए हैं ना हम उसको आराम से समझा पाए। तो उसके लिए ही ये आईडीज बनी हुई है। ओके। तो अपन इसको डाउनलोड इजीली कर सकते हैं इक्लिप्स डाउनलोड करके। और ये यानी फॉर विंडोज और फॉर एप्पल्स के लिए भी आ जाएगा। सो अपन अपन इसको डाउनलोड कर देंगे, इंस्टॉल कर देंगे तो ये इंटरफेस अपन को खुलेगा। सो लाइक अ हैकर की फीलिंग आती है इसको खोलने के बाद कि है ना अच्छा काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट सिंटेक्स तो ये होता है जावा का कि है ना अपन को ये सारी चीजें लिखना, ये लिखनी पड़ती है कि ये चीज लिखनी पड़ेगी, ये चीज लिखनी पड़ेगी, इसका ये अंदर काम अपन बॉडी बॉडी का काम करते हैं। अब क्या होता है कंपाइलर को ना हम ये इतना सब कुछ देंगे, उसके बाद फिर है ना अपन अपना कोड लिख सकते हैं ऐसे। तो फर्स्टली अपन को बस है ना 2 नंबर को ऐड करना है। सो ये अपन स्कैनर लेते हैं इनपुट के लिए, जो इनपुट लेता है, और ए एंड बी मैंने 2 नंबर इनपुट करा दिए और ये मैंने प्रिंट करा दिया। तो अगर है ना मैं इसको रन कराऊँ और 2 नंबर दूँ अगर, तो मेरे को इसका सब मिल जाएगा। तो ये सिंपल ही है जावा का प्रोग्राम, बट इसमें यही है कि है ना अगर जितना आप ज़्यादा लिखोगे ना उतनी आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसलिए जावा को ज़्यादा लिखना पड़ता है, बट इट इज़ बेटर फॉर यू। और सीखने को बहुत कुछ है इसके अंदर। और बस इतना सही है जावा में तो। और या और कुछ और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हेलो। किसी को डाउट है जावा के अंदर, कोई जावा से रिलेटेड कोई? कोई जावा में करता हो या तो कोई इंटरेस्टेड हो। चलो कोई बात नहीं, कूल। अब ओके ये नहीं। सीख लिया भाई, देख लिया प्रोग्रामिंग क्या होती है। ओके धीरज, थैंक यू। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू गाइस। माय नेम इज लोकेश सिंह राजावत, कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर एंड प्रेसिडेंट ऑफ कोडशेफ आरटीओ चैप्टर। आगे बता देंगे इसका क्या मतलब है। अब बात करता हूँ कि यार देख लिया प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, कहाँ काम आती है ये भी पता लग गया। अब
ये देखना है कि यार मैं खुद सीख लिया, बता दिया, यूट्यूब वीडियो देख लो, रिसोर्सेज बता दिए, अब प्रैक्टिस क्या करूं मैं, मतलब मैं पहचानूं कैसे कि मुझे कितना आ गया, या फिर मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहता हूँ कि पहले मैं इतना सीखूंगा, पहले बेसिक फिर थोड़ा एडवांस थोड़ा एडवांस, तो मैं देखूं कैसे, मतलब अपने आप को एनालाइज कहाँ से करूँ, कहाँ से कोई ऐसा बेटर रिसोर्स होगा। तो हैकर रैंक इज द बेटर प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब भूमिका बॉस फ्रॉम सेकंड ईयर CSE will explain you about hacker rank. Bhumika, Yeah, boss. Hello, everyone. share My your name screen. is. Okay. Is it visible? Yeah. Yeah. Okay. Hello, everyone. My name is Bhumika Gupta, and I'm from second year, and my branch is computer science engineering. So today I want to tell you about the best platform to learn and practice the language and the data structure for beginners. So which is HackerRank. Okay. This is the page. हम यहाँ पे है ना, हमारे ये वाला पार्ट जो है स्किल अवेलेबल फॉर प्रैक्टिस, हम यहाँ पे आके किसी भी चीज़ के लिए है ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे हमें सी के लिए प्रैक्टिस करनी है, हमने सीख ली लैंग्वेज, अब मुझे प्रैक्टिस करनी है कि मैं कहाँ पे करूँ, तो इसके लिए बेस्ट है। जैसे मुझे एल्गोरिथम करनी है, डाटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन करने हैं, C++ के करने हैं, सी के करने हैं, तो जैसे मुझे सी का करना है। ओके, जो सी है वो बेसिक लैंग्वेज है जो हमें फर्स्ट ईयर में भी सिखाई जाएगी, सबसे बेसिक लैंग्वेज यही होगी हमारी। तो फिर ये सी का क्वेश्चन करना है। तो अब है ना इसमें जैसे हम क्वेश्चन सारे आ गए, यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हैं, तो इसमें है ना सारे सब में स्कोर्स हैं, मैक्सिमम स्कोर 30, मैक्सिमम स्कोर 5, ऐसे सब में स्कोर्स हैं। तो हम जैसे जैसे सारे क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमें स्कोर मिलते जाएंगे, और वो स्कोर है ना यहाँ पे जो पॉइंट ये वाला पार्ट है यहाँ पे ऐड होते जाएंगे, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो हमें यहाँ पे स्टार्स भी बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे 30 पॉइंट्स और कर लूँ तो ये 4 स्टार हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टार भी बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे। तो जैसे अब मैंने एक खोला, तो सबसे बेसिक, और हम हाँ यहाँ पे हम फिल्टर भी यूज कर सकते हैं कि हमें सिर्फ अपने सॉल्व क्वेश्चन देखने हैं कि हमने जितने सॉल्व क्वेश्चन किए वो यहाँ पे हैं। हमें अपने सिर्फ अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो वो ये ऐसे कर सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल हम सेट कर सकते हैं, हमें इजी सिर्फ इजी क्वेश्चन करने हैं या फिर मीडियम क्वेश्चन करने हैं, हार्ड करने हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं। और हम सब डोमेन के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ लूप वाले करने हैं, कंडीशनल वाले करने हैं, एरे के करने हैं, फंक्शन के करने हैं, तो हम यहाँ से कर सकते हैं सब डोमेन के अकॉर्डिंग। तो अभी सबसे बेसिक प्रोग्राम जो होता है सी लैंग्वेज का, जो हमें सबसे पहले बनवाया जाता है, वो होता है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। तो हम जैसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारा ऑब्जेक्टिव आएगा कि हमें करना क्या क्या है, कैसे करना है, हमें क्या परफॉर्म करना है, और ये टास्क है कि हमें क्या परफॉर्म करना है। फिर हम इसमें एग्जाम्पल दिए होंगे, इनपुट है, आउटपुट है थोड़े, ठीक है। तो अब जैसे है ना इनपुट आउटपुट है, तो फिर ये वाला पार्ट तो पूरा बना मिलेगा। फिर हमें ये वाला जो कोड वाला पार्ट है जो मैंने पहले लिखा हुआ है, तो ये कोड वाला पार्ट हमें लिखना पड़ेगा उसमें, और फिर हमें यहाँ पे रन कराना पड़ेगा। तो जैसे ये टेस्ट केस, इसमें 0 टेस्ट केस मेरा पास हो चुका है, तो यहाँ पे आ गया। अगर हमें है ना इसमें कुछ और भी इनपुट डाल के करना है, जैसे हमें कुछ देखना है कि हमें ये वाला इस इनपुट के लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और जब हम पूरा श्योर हो जाए कि हमारा सही है बिल्कुल, तो हम वहाँ पे जाके सबमिट कोड कर सकते हैं, सबमिट कर देंगे। तो जैसे इसमें तो टेस्ट केस 0 था, बाकी में बहुत सारे टेस्ट केस होते हैं जिसमें सारा पास करना होता है, तो वो हो जाएगा, फिर ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो जाएगी। तो और हम जैसे इसमें सबमिशन कि हमने कब कब कौन सा सबमिशन किया था, या फिर हमें हमारे कोड चाहिए तो वो यहाँ पे मिल जाएंगे। लीडर बोर्ड पे हम अपनी रैंकिंग देख सकते हैं, और जब हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया कि कैसे करना है, तो हम यहाँ पे जाके एडिटोरियल भी देख सकते हैं। एडिटोरियल मीन्स हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका, पर अगर हम एक बार एडिटोरियल ओपन कर लेते हैं तो हमें फिर मार्क्स नहीं मिलते, वो स्कोर हमारा नहीं बढ़ता है। ओके, तो ये था पूरा हैकर रैंक के बारे में। ओके बॉस। Thank you, Bhumika. Telling me about HackerRank platform. So guys, मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि देखो, सबसे पहले हमने स्लाइड्स देखी, तो ये देख लिया कि भाई हैकर रैंक क्या होता है, वो प्रोग्रामिंग क्या होती है, फिर देख लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, फिर देख लिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी है, C++ है, पाइथन है, जावा है, सबका पता लगा लिया कि यहाँ से यूट्यूब देख लो, यहाँ से पढ़ लो, ये वेबसाइट है, ये फॉलो कर लो।
पर अब ये बताओ कि यार हम तो इतना सब कुछ नहीं कर सकते एक साथ, हमें क्या चूज करना चाहिए, क्या होती, मतलब एक चूज करें, हम तो इतना सारा बता दिया, एक क्या फॉलो करूं, एक बेस्ट बेस्ट चीज बताओ। तो देखो फर्स्ट ईयर में हो तो सी जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आएगी, और सी प्लस प्लस अगर कोई CSIT का स्टूडेंट है तो सी प्लस प्लस सेकेंड ईयर में आएगी, और बाकी किसी को भी कोई लैंग्वेज नहीं आएगी। तो लैंग्वेज जो है वो आदमी को खुद सीखनी होती है। कॉलेज में सिखाएंगे सी, बट तुम्हें सिर्फ ये सिखाएंगे कि सी बेसिक्स क्या होती है, बस। उसके बाद में कोई तुम्हें कुछ नहीं सिखाने वाला, तुमको खुद सीखना है सब कुछ, ठीक है। अब रिसोर्सेज जो बताए थे, लिंक्स वगैरह, वो मैं तुमको स्लाइड्स दे दूंगा, तो तुम उसके बाद में आराम से ये स्लाइड जो है विजिट कर सकते हो, एक एक लिंक विजिट करना और पढ़ सकते हो। यूट्यूबर का लिंक दे रखा है इधर, वेब लिंक्स दे रखे हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिंक दे रखे हैं, ठीक है। तो तुम एक एक को फॉलो करना और तुम किसी भी को भी विजिट कर सकते हो। सो मैं तुम्हें बताता हूँ अब आगे के लिए, मेरी स्क्रीन दिखाता हूँ, स्क्रीन। आतिश, भूमिका, कोई भी एक स्क्रीन विजिबल है? हाँ सर। यस बस। ओके, तो ये देख लिया हमने। ये देखो रिसोर्सेज दे रखे हैं हमारे पास, तो गाइस ये देखो, सी लैंग्वेज का सौरभ शुक्ला यूट्यूबर है, यहाँ से जाओ, पूरी यूट्यूब लिस्ट पढ़िए पूरी एकदम आराम से, इसको देखो, विजिट करो। किसी को सी प्लस प्लस सीखनी है, अच्छा सी प्लस प्लस क्यों सीखते हैं बता दूं, 85% ऑफ द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव कोडिंग में सी प्लस प्लस को यूज करते हैं। अच्छा, कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम कोडिंग क्या होती है? इसका मतलब होता है कोई प्रॉब्लम दी हुई है कि राम के पास 10 रुपए है, वो 2 रुपए खरीदेगा, 5 रुपए खरीदेगा। तो हम बचपन में वैसे क्वेश्चंस करते थे, तो उसी क्वेश्चंस का हायर लेवल वर्जन जो है हम कोडिंग के से सॉल्व करते हैं, मतलब प्रोग्राम लिखते हैं और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर कैलकुलेट करके दे देता है हमें। एक तरह से उस तरह के प्रोग्राम बना करके चैलेंज करना, तो वो सी प्लस प्लस में 85% ऑफ द वर्ल्ड सी प्लस प्लस फॉलो करती है। अब ये कहां से सीखना है? कोड विथ हैरी, ये एक यूट्यूबर है, बहुत अच्छा यूट्यूबर है, पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है अच्छे से, तुम पढ़ सकते हो जाकर के। पाइथन सीखना है, टेलिस्को वेब यूट्यूबर है, उनसे सीख सकते हो। जावा का भी आपको अपनी कक्षा धीरे धीरे बताया ही है, ठीक है। अब तुमको देखना है कि यार यूट्यूब से कौन पढ़ेगा, कुछ वेब लिंक्स हो जाए जहां से हम कुछ कभी कुछ प्रोग्राम भूल जाए तो सीधा जाके देख लें। हैकर रैंक प्रैक्टिस के लिए अभी भूमिका ने बताया, गीक्स फॉर गीक्स, इसमें इतना कंटेंट है कि हर एक चीज का सॉल्यूशन तुम्हें यहाँ मिलेगा, ठीक है। सॉरी गाइस, ठीक है। अब आते हैं डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसी, जैसे कोई भी जैसे मैं आया, जैसे मैंने सी प्लस प्लस बनाई, तो मैं क्या करूंगा कि दुनिया को बताऊंगा कि सी प्लस प्लस क्या होती है, सी प्लस प्लस की बेसिक चीजें क्या है। सारी सी प्लस प्लस जो भी लाइब्रेरीज, जो भी वर्ड, जो भी सिंटेक्स काम आते हैं, जो भी हर एक चीज अच्छे से मेंटेन करके मैं इस डॉक्यूमेंटेशन में लिख दूंगा, सेम इन चीजों में लिख दूंगा। तो ये सी की डॉक्यूमेंटेशन है, ये सी प्लस प्लस की डॉक्यूमेंटेशन है, ये पाइथन की है और ये जावा की है। तो मैंने विजिट करके एक एक को देख सकते हो और हर एक चीज, हर एक सिंटेक्स एक सीक्वेंस में सीख सकते हो। स्टार्टिंग यूट्यूब से करो, प्रेफर है क्योंकि हमें इंटरेक्शन चाहिए होता है अच्छा सा। उसके बाद में वेब लिंक्स, और फिर जब हायर लेवल पे चल जाओगे तो रिसोर्सेज काम आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन काम आएंगी, क्योंकि उस टाइम पे जाकर के कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाती है और वहां तुम हर एक चीज को हेल्प नहीं कर सकते हैं। ठीक है। प्लेटफॉर्म्स, हैकर रैंक, अगर तुम बिगिनर हो हैकर रैंक से स्टार्ट करो, एक लैंग्वेज चूज करो, सी प्लस प्लस या पाइथन, जाओ हैकर रैंक पे जाके हेलो वर्ल्ड से शुरू करो। एक एक स्टेप तुमको बताएंगे, वो एक एक स्टेप फॉलो करते जाओ, मार्क्स करते जाएंगे, स्टार्स बनते जाएंगे, उससे तुमको बूस्ट मिलता रहेगा, तुमको लगता रहेगा कि मुझे आ रहा है, प्रैक्टिस करते जाओ। जब हैकर रैंक पे अच्छा हो जाओ तो कोड शेफ पे स्विच कर जाओ। कोड शेफ पे क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, जस्ट अगर तुमको लैंग्वेज आ जाए, पहले लैंग्वेज हैकर रैंक से सीख लो, फिर यहाँ जाके प्रैक्टिस कर लेना, और जब ये थोड़ा लगे तुमको हैंडी हो रहा है तो फिर कोड फोर्सेस में स्विच कर जाना, ठीक है। अब गीक्स फॉर गीक्स का क्या रोल रहेगा? गीक्स फॉर गीक्स का रोल रहेगा कि ये हमारी मदद करेगा एट अ टाइम, हर एक टाइम पे हमारे साथ में रहेगा। कुछ भी हम इन तीनों में से जब भी हम कुछ भूलते हैं तो इसको देखेंगे, पहले जाके सर्च करेंगे गूगल कि ये कैसे होगा, तो वो जाकर के गीक्स फॉर गीक्स पे देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं अब कि एक्चुअली क्या हुआ कि मैं तुमको बता दूं, द आर्टिव कोडर्स फरवरी में शुरू हुआ था। फरवरी में जब 2020 में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उससे एक महीने पहले अभिषेक बॉस ने अपनी कॉलेज में कोडिंग कोई नहीं करता था, मतलब प्रोग्रामिंग सब करते थे, सबको लैंग्वेज आती थी, बट कॉन्टेस्ट कोई नहीं देता था।
कोई रेगुलर चैंपियनशिप में नहीं जाता था कोडिंग की चैंपियनशिप्स होती हैं, ठीक है, चैलेंजेस होते हैं, तो उसमें कोई नहीं जाता था। तो अभिषेक बॉस ने स्टार्ट किया, फाइनल ईयर से थे, 10 का ग्रुप बनाया और द आर्टिक कोडर्स नाम रख दिया उसका और स्टार्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि 10 से लोग थे फरवरी में, जब जैसे लॉकडाउन लगा तो सब घर चले गए। अब घर जाने के बाद कुछ एक्टिविटी बचती नहीं है, तो कोडिंग सबने स्टार्ट कर दी। जब कोडिंग स्टार्ट कर दी तो लोग आते गए, हम 10 से जुड़ते गए। आज 257 का ग्रुप, 257 का तो अलग बना पड़ा है ग्रुप, उसके बाद में 200 का ग्रुप अलग बना पड़ा है जो फर्स्ट ईयर का है, ठीक है। तो 400 की लोगों की हमारे पास कम्युनिटी है जो कोडिंग करती है। 400 में से 100 एक्टिव मेंबर्स हैं जो रेगुलर कोडिंग करते हैं, ठीक है, क्योंकि 300 देखो हर जगह होती है, एफिशिएंसी इतनी अच्छी किसी की भी नहीं होती। तो 400 में से 100 लोग वैसे हैं जो रेगुलर बेसिस पे कोडिंग करते हैं, डेली बेसिस पे, ठीक है। तो हुआ क्या, धीरे धीरे कम कम्युनिटी बड़ी हुई, तो हमने एक कोड शेफ आरटी चैप्टर होता है, कॉलेज चैप्टर होते हैं कोड शेफ के, प्रोग्रामिंग क्लब्स जो जैसे होता है ना गूगल डेवलपर क्लब, गूगल अपने क्लब्स कॉलेज में खोलता है, सेम कोड शेफ अपने क्लब्स हर एक कॉलेज में खोलता है, और उनका नाम, जैसे अपने कॉलेज का नाम है कोड शेफ का, कोड शेफ आरटी चैप्टर। हमने इसके लिए अप्लाई किया, हमारी कोर टीम थी, हमने अपनी इसके लिए अप्लाई किया और हमको सबको मिल गया। तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, इसके अंदर में क्या सेशंस करवाए। ये सेशन जो हो रहे हैं, इससे पहले जो सेशंस हुए थे इसमें तुम नहीं थे हालांकि, वो सारे सेशन इसी के अंडर हुए थे, इसी प्रोग्राम के अंडर हुए थे। इस प्रोग्राम में हमने क्या लर्निंग सीरीज बनाई, उस लर्निंग सीरीज में हम फॉलो करते गए और एक ही चीज को करेंगे। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द आरटी कोटा अ कोड शेफ चैप्टर वाज ब्रॉट बाय अ टीम ऑफ द आरटी कोडर्स। हम द आरटी कोडर्स से ही बिलोंग करते थे, तो हमने अप्लाई किया था, फिर हमारा इंटरव्यू राउंड हुआ, हम सबको ये कोड शेफ आरटी चैप्टर मिला। ये क्यों मिला, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को, एटमॉस्फेयर को, क्या होता है किसी चीज को काम कर रहे हैं ना, तो अगर किसी चीज का बड़े बड़े प्लेटफॉर्म का टैग होता है ना हमारे पास में, तो हमको काम करने में ज्यादा सपोर्ट मिलता है। तो वही टैग कोड शेफ आरटी चैप्टर हमको दे रहा है, वो रिसोर्सेज देगा, वो एक वे देगा, एक तरीका देगा जिससे आप बढ़ोगे सब, ठीक है। दिस चैप्टर ब्रॉट अ ट्रेमेंडस चेंज एंड सॉ अ सिग्निफिकेंट राइज इन द नंबर ऑफ कोडर्स। अच्छा, इस चैप्टर से क्या हुआ देखो, जनवरी में हमारे पास 7 लोग कोडिंग करते थे, ठीक है, उसके बाद फरवरी में देखो इतने बड़े, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हाईएस्ट था 45, ठीक है। ये कैसे बढ़ रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलता है लाइव कॉन्टेस्ट में। कम्युनिटी 200 की है, कम्युनिटी अभी 400 की हो गई, बट जो लाइव कॉन्टेस्ट होते हैं उनमें सिर्फ 50 या 60 लोग जाते हैं, मैक्सिमम गया हुआ है 45, और इस मंथ का अभी 2 दिन में 39 हो चुका है। लेट्स सी कि आगे वाले आने वाले मंथ्स में कितना हो जाता है, ठीक है। हम क्या क्या एक्टिविटीज करवाते हैं, मेंटरिंग करते हैं, कोई भी स्टूडेंट होता है तो उसको गाइडेंस की जरूरत होती है, मोटिवेशन की जरूरत होती है। एक टाइम पे आता है कि बॉस मैं यहाँ स्टक हो रहा हूँ, मेरे को ये कोर्स समझ में नहीं आ रहा, तो ये कम्युनिटी उसी के लिए, तुमको कोई डाउट आता है तुम अपना डाउट उठाओ, उस ग्रुप में डाल दो, फिर क्या होगा कि वहां कोडर सारे बैठे होंगे, वो तुमको आंसर कर देंगे। क्या होता है कि अब हम किसी एक सीनियर से पूछ रहे हैं, तुमने भेजा सुबह, आंसर आ रहा है शाम को, तुम बोल रहे हो कि यार क्या ये सच है, तो मैं छोड़ दूं, मैं फिर उसको ट्रेनिंग कर लूँ कहीं। तो कम्युनिटी ये काम करती है, जैसे तुमने डाला 200 लोगों में से कोई ना कोई तो होगा जो उस टाइम फ्री होगा और प्रॉब्लम तुम्हारी तुरंत सॉल्व कर देगा, ठीक है। और एक वे होता है, एक तरीका होता है, एक मोटिवेशन होता है। जैसे हम कोई चीज काम स्टार्ट करते हैं, 10 दिन कर रहे हैं, 12 दिन कर रहे हैं, फिर थोड़े दिन में आता है अरे यार अब दूसरी चीज दिखती है, अब यार एंड्रॉइड दिख रहा है, वहां घुस जाते हैं। तो एक मोटिवेशन की तरह काम करने के लिए होल्डिंग कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं, रेगुलर बेसिस पे तुम्हारे ट्रैकिंग्स होते हैं कि तुम कहां तक पहुंचे, कहां तक नहीं पहुंचे, गाइडेंस होती है, एक वे होता है जो हम ये कम्युनिटी प्रोवाइड करवाती है आपको, ठीक है। अब जब कॉलेज खुल जाएंगे तब इवेंट्स भी करवा लेंगे, और सेशंस तो चल ही रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। इवेंट्स में क्या होगा, लाइक क्लासेस हो जाएंगी लाइव, और तुम्हारी सबकी एक्टिविटीज हो जाएंगी, कॉलेज खुलने दो उसका भी करवाएंगे जुगाड़, ठीक है। तो कोड शेफ आरटी चैप्टर की मैं तुमको टीम से मिलाता हूँ जिसने अप्लाई किया और कोड शेफ आरटी चैप्टर को अपने कॉलेज में लेके आए। अच्छा, अपने साथ में एक फैकल्टी कोऑर्डिनेटर है एनएसपी सर, सीएस डिपार्टमेंट के हैं ये तुम्हें हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में किसी फर्स्ट ईयर में किसी को बच्चे को सी या C++ पढ़ाएं, तुम्हारा सब्जेक्ट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा कुछ करके तुम्हारे पास फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट होगा, तो वो तुमको हो सकता है एनएसपी सर पढ़ाएं। ये हमारे साथ में ये अभिषेक बॉस हैं जिन्होंने स्टार्ट किया था कोड शेफ आरटी द आरटी कोडर्स, जो ये लोगो है ये इन्होंने कम्युनिटी इनकी है, इन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में उसको हम कंटिन्यू करते गए और कोड शेफ आरटी चैप्टर हम लेके आ गए। लोकेश सिंह राजावत ये मैं, जो हम सब सीसी लीडर्स है, कोड शेफ चैप्टर लीडर्स, हम चारों ने मिलकर अप्लाई किया था। ये नितिन गुप्ता ये कंप्यूटर साइंस से 3rd ईयर, संचिता गुप्ता कंप्यूटर साइंस 3rd ईयर, निपुण खंडेलवाल कंप्यूटर साइंस आईटी ब्रांच 3rd ईयर, ठीक है। तो हम चारों ने मिलकर अप्लाई किया था कोड शेफ आरटी चैप्टर के लिए और हमको मिल गया।
फिर हमने उसके बाद में टीम को बढ़ाने के लिए एग्जीक्यूटिव टीम बनाई। अब एग्जीक्यूटिव टीम में ये भूपत जांगिड़ जिन्होंने आपको अभी पाइथन के बारे में बताया, आतिश शैलगोत्रा ये सेकंड ईयर से सीएससी ब्रांच जिन्होंने आपको जो होस्ट थे इस सेशन के, धीरज बागचंदानी जो अभी आपको जावा के बारे में बता रहे थे सेकंड ईयर से, ये अमित यादव ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है। आपको बोला था ना कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मैकेनिकल ब्रांच से कोडिंग क्या काम आती है। अमित यादव इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है और अभी कोडिंग चैलेंजेस में टॉप करते हैं, जो हमारी कोडिंग कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें टॉप कर रहे हैं। अभी रैंक इनकी 12 चल रही है, इंटरनेशनल रैंक, ठीक है। तो अभी के कॉन्टेस्ट में, लाइव कॉन्टेस्ट में, ठीक है। तो अमित यादव इलेक्ट्रिकल ब्रांच से है, तो डोंट बी लाइक दिस कि यार मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, मैकेनिकल ब्रांच से, तो कोडिंग मैं कैसे करूंगा और मुझसे कैसे होगा ये सब। भूमिका गुप्ता जिन्होंने आपको हैकर रैंक के बारे में बताया। प्रतीक्षा शर्मा सेम होस्ट थे, आतिश और प्रतीक्षा। पारस जो जितने भी ग्राफिक्स होते हैं, ये पोस्टर्स, ये पोस्टर देख रहे हो, ये वाला ये सारे पारस सुमन ने बनाए सेकंड ईयर से, ठीक है। शुभम दादीज कोडिंग करते हैं आईटी ब्रांच से सेकंड ईयर। प्रथम मेघानी ये ईसी ब्रांच से, धीरज एंड प्रथम ईसी ब्रांच से, ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, बाकी सब सीएसआईटी से, ठीक है। ये इवेंट मैनेजमेंट देखते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं, ठीक है। तो ये पूरी टीम है और ये सब के सब कोडर्स हैं। ये टीम में इसलिए नहीं है कि ये पोस्टर बनाते हैं ये फिर इवेंट मैनेजमेंट देखते हैं, स्टूडेंट सपोर्ट देखते हैं, सबका सब कोडर है, इसलिए ये टीम में। और इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है बाकी कि टीम में होने के बाद में ये क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे आप केयर कर सकते हैं, ठीक है। अब कोड शेफ आर्टिफिशियल के बारे में बता दिया, ये हो गया। अब मैं क्या करता हूं, तुम्हें दिखाता हूं कोड शेफ के बारे में। क्या होता है कोड शेफ? कोड शेफ एक बड़ा नाम है। ये लिंक का वेबसाइट में मैं डालता हूँ इसमें चैट बॉक्स में। हाँ बिल्कुल, सिविल स्टूडेंट कैन कोडिंग, बिल्कुल भाई, सिविल स्टूडेंट कोडिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ ये कोड शेफ, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा था ना लॉन्ग चैलेंज, जिसको चल रहा है अभी 4 दिसंबर से 14 दिसंबर, 10 दिन का होता है, टाइम प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं तुमको बताता हूँ, एक सेकेंड, तुमको बताता हूँ ना, तुम बता रहा था ना तुमको अमित कोडिंग करता है, अमित दिस अमित इलेक्ट्रिकल ब्रांच। ये देखो 10 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये अपने कॉलेज की रैंकिंग देखते हैं ऐसे। ये देख लो भाई, अमित यादव 17 रैंक चल रही है। टोटल स्टूडेंट्स 38 हमारे साथ में जो कोडिंग कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, 2 दिन से 38 स्टूडेंट्स। ये पूरी कॉलेज की रैंक लिस्ट है। ये मेरा नाम आ रहा है यहाँ पे 373 से रैंक। 4 क्वेश्चन किया हमने, इन्होंने 5 क्वेश्चन कर दिए, ठीक है। तो 2 पेज तक ये लिस्ट है अभी तक। बाकी तुम लोग कोडिंग करोगे आगे, तुम्हारा नाम आएगा इस पेज पे, ठीक है। तो ऐसे रैंकिंग चलती रहती है सबकी जो कोड करते हैं। मैंने जैसे 4 क्वेश्चन कर दिए, 4 टिक आ गए, अब मैं आगे वाला करूंगा तो आगे वाले टिक्स आते रहेंगे और मेरे क्वेश्चन रैंकिंग बढ़ती जाएंगी। अभी मेरी रैंक 373 चल रही है, हो सकता है इन फ्यूचर में अगर ये सारे क्वेश्चन कर दूं तो रैंक अच्छी हो जाए, ठीक है। तो कोडसेट पे ये आ तो गई, यहाँ पे देखिए कैसे क्या प्रैक्टिस करनी है। हैकर रैंक का देख लिया तुमने, तो देखो यहाँ से कैसे करनी है प्रैक्टिस पे। इस पे जाना, जाकर के प्रॉब्लम टैग्स, इस पे जाकर प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम बाय डिफिकल्टी लेवल जाके अब क्या करना है, अपने सॉर्टिंग करनी है। मतलब मेरे को इजी पहले चाहिए, सक्सेसफुल सबमिशन पे डबल क्लिक कर दो, ये होगी सॉर्टिंग। अब जैसे मैं ये उठाता हूँ ऐड टू नंबर्स, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अब तक हमने प्रोग्रामिंग देखी है सिर्फ कि लैंग्वेज सीख लो, कोड कर लो, ऐड कर लो 2 नंबर को, ये कर लो। कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या होती है? देखो, शिवम इज द यंगेस्ट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन देखो जैसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं ना, सेम क्वेश्चन है। शिवम एक लड़का है, ठीक है भाई साहब, 12 साल का है, 12 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है साहब। शिवम इज लर्निंग प्रोग्रामिंग एंड टुडे ही इज राइटिंग हिज प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, ठीक है। गिवन 2 इंटीजर्स, मतलब 2 नंबर है। इंटीजर मतलब इंटीजर पता ही होगा ना, 12th के बच्चों, साइंस मैथ्स बैकग्राउंड तो इंटीजर पता होना चाहिए, जिसमें फ्लोटिंग वैल्यू, पॉइंट वैल्यू नहीं होती, 2 3 4 लाइक दिस इंटीजर वैल्यू, ठीक है। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड दिस नंबर। अब क्या करते हैं बचपन 2 नंबर को लेते हैं, जब 7 और 8 को ऐड करना तो क्या करते हैं, 7 और 8 ऐड किया, 15 आंसर कर दिया। तो सेम हमें करना है,
इनपुट क्या क्या होंगे, टी, ए और एक टेस्ट केस होगा और ए और बी होगा, ठीक है, देख लेते हैं। आउटपुट इन दोनों का सम, 3 टेस्ट केस होंगे, ठीक है। 1 और 2 का एडिशन 3, 100 और 200 का एडिशन 300, 10 और 40 का एडिशन 50, ठीक है। अरे भाई रुक जाओ, ठीक है। तो ये एडिशन हमको ये प्रोग्राम बनाना है कि तीन बार चलना चाहिए प्रोग्राम। एक बार जब इन दोनों का सम करूं तो ये आ जाए, एक बार इन दोनों का सम करूं तो ये आ जाए, एक बार इन दोनों का सम करूं तो ये आ जाए। कुछ ऐसा प्रोग्राम बना के दिखाओ, ठीक है। तो मैं गया और टाइम लिमिट दे रखी मुझे कि 1 सेकंड के अंदर बनना चाहिए सारा प्रोग्राम, ठीक है। और ये मुझे साइज दे रखी है कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए प्रोग्राम, ठीक है। मैं गया सबमिट पे, यहां से मैंने लैंग्वेज चूज करी, ये सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा जो भी है। मैं सी प्लस प्लस में करता हूँ तो मैं सी प्लस प्लस चूज कर लेता हूँ। अब ये हालांकि ये कोड जो है वो सी का है, तो सी और सी प्लस प्लस में कोई ज्यादा, सी प्लस प्लस में सी के कोड चल सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि सी और सी प्लस जो है वो सी का ही एक्सटेंशन है। तो सी प्लस प्लस में सी के कोड चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये कोड लिख लिया। अब ये कोड कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते, ये तुम हैकर रैंक पे जाकर के सीखोगे, धीरे धीरे यूट्यूब से सीखोगे, फिर हैकर रैंक पे जाओगे तो वहां सब सीख जाओगे। मैं तुम्हें बेसिक एल्गोरिथम सिखा देता हूँ। ये लाइब्रेरी होती है, ठीक है, ये नेम स्पेस, और उसके बाद में इंट मेन। टेस्ट केस 3 थे जो बताया था मैंने आपको, 3 टेस्ट केस यहाँ पर होंगे। देखो 3 टेस्ट केस मतलब 3 बार चलेगा प्रोग्राम। तो मैंने क्या किया, 3 बार चला लिया, जब तक कि 3 बार चलेगा। 3 माइनस माइनस 1 2 3, 3 बार चलेगा। हर बार 2 नंबर लेगा और 1 नंबर आंसर करेगा, 2 नंबर लेगा फिर 1 आंसर करेगा। आंसर में क्या है, ए और बी ले रहा है, ए और बी को जोड़ रहा है, आंसर डाल रहा है, आंसर प्रिंट कर दे रहा है। यहां से इसको रन कर सकते हो, यहाँ इनपुट लिखो, तुम देखो 2 टेस्ट केस है, एक है 100 200, एक है 500 और 600। रन करके देख लो। रनिंग, बताओ 100 और 200 का आंसर क्या आना चाहिए, 300 करेक्ट आ रहा है। 500 600 का आंसर क्या आना चाहिए, 1100 करेक्ट आ रहा है। तब तुम्हें लग जाए करेक्ट आ रहा है तो सबमिट मार दो। ऐसे सबमिट मारोगे, सबमिशन डाल दिया, सबमिशन इज क्यूब। अब अगर तुम्हारा प्रोग्राम जो तुमने लिखा है अगर वो करेक्ट होगा तो ग्रीन ग्रीन लाइन आ जाएंगी, जैसे कि आ गई ग्रीन ग्रीन लाइन। और अगर ये प्रोग्राम गलत होता तो तुम्हारा रेड आता, जैसे मैं दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये प्रोग्राम कर दिया गलत, ठीक है। अब देखना, जैसा भी इसमें 25 सेकंड में सिर्फ एक ही बार सबमिशन मार सकते हो, तो 25 सेकंड रुको, सबमिशन मारते हैं। देखो मैंने प्रोग्राम कर दिया गलत। मैंने क्या करा कि ए और बी ले रहा हूं तो उन दोनों को सम क्या ऐड नहीं कर रहा, मैं सबट्रैक्ट कर रहा हूं उनको, ठीक है। लेट्स सी आंसर क्या होता है, क्या ये गलत बताता है सही बताता है, ग्रीन पट्टी आती है नहीं आती है, ठीक है। पहले रन करके दिखा दो तुम उनको कि रन करने में देखो क्या दिखा रहा है। कितने लोग बने हुए हमारे पास, 67, ओके। देखो 100 और 200 को जोड़ने पर आना चाहिए तो 300 पर आ रहा है -100, क्यों, 100 - 200 -100, 500 - 600 -100। गलत है बिल्कुल प्रोग्राम, पर मैंने कर दिया सबमिट, क्योंकि मुझे थोड़ी पता है प्रोग्राम बनाते वक्त मुझे मुझसे कोई गलती हो गई होगी, प्लस की जगह माइनस दब गया, तो ये कंपाइलर आपको पहले से बता देगा कि यू आर रॉन्ग। ये रेड लाइन आ जाएगी पूरी की पूरी कि तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो गलत है। जब जैसे पहले ग्रीन आई थी ना लाइन, अब रेड आ रही है, तुम्हारा प्रोग्राम गलत है, तुम चेक करो, अपनी गलतियां चेक करो। फिर हम जाएंगे दोबारा सही करेंगे, फिर दोबारा सबमिट मारेंगे, तब तक मारेंगे जब तक ग्रीन नहीं आ जाती है। ओके, सो जैसे मैंने सबमिशन मारे, अभी मैंने जब करेक्ट मारा तो ग्रीन आ गया, जैसे रॉन्ग मारा तो रॉन्ग आ गया। ये सब मेरे सारे सबमिशन दिखा देगा यहाँ। ये मैं जितने कॉन्टेस्ट में पार्ट लूंगा ऐसे ऐसे दिखाते जाएगा मुझे कि मेरे कौन से कॉन्टेस्ट में कितनी रैंक आई थी। एक बार में 1100 आई थी, जब यहाँ कर रहा था तब 661 आई थी, जब मैं गिरा तब मेरी रैंक 1622 थी, जब मैं गिर गया। तो ऐसे रैंक बढ़ती जाती है, रैंक गिरती जाती है, ठीक है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ भाई, कोई माइक ऑन करा, किसी का डाउट है क्या? देखो किसी को डाउट हो तो बीच में अब तुम अनम्यूट करो, पूछ लो, क्योंकि ये डाउट सेशन है। अभी जो चल रहा है वो डाउट सेशन है, क्योंकि सेशन पूरा खत्म हो चुका, स्लाइड्स पूरी एंड हो चुकी है।
अब बस मैं तुम्हें रिसोर्सेज बताता रहूंगा और तुम्हें ज्यादा डाउट्स तो पूछते रहो। ये लिंक है, जो वेब लिंक है, जो ट्री है एक हमारा, ये जहां से हम सारे रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं। ये मैं तुम्हें भेज देता हूँ चैट बॉक्स में, ये भेज दिया, ठीक है। इस पे जाना सबके सब, तो ये पेज खुल के आएगा। तुम्हें कम्युनिटी ज्वाइन करनी है, कुछ नहीं करना, इस पे क्लिक करो, ये फॉर्म आएगा, मैंने तो भरा हुआ है, तुम्हारे पास फॉर्म ओपन आएगा, तुम उस फॉर्म को भर दो और रेस्पॉन्ड कर दो, तुम कम्युनिटी में ज्वाइन हो गए। कुछ भी नहीं करना, कोई एफर्ट नहीं मार रहे फालतू के, ठीक है। ये कोड से आरटी चैप्टर जो हमने इनिशिएटिव लिया था, इसका ट्री अलग से बाद में समझा दूंगा। तुम्हें लीडर बोर्ड देखना है कि अपने कॉलेज के बच्चे कहाँ पे हैं, इस पे क्लिक करो तो एक लीडर बोर्ड आएंगे, 4 लीडर बोर्ड। कोड शेफ का देखना है तो ये कोड शेफ का लीडर बोर्ड आ गया। कोड फोर्स का देखना है, कोड फोर्स का जाएगा। हैकर रैंक का देखना है, हैकर रैंक का जाएगा। गीक्स फॉर गीक्स का देखना है, गीक्स फॉर गीक्स का जाएगा। मैं तुम्हें एक एक से दिखा देता हूँ, जो पहले खुलेगा उसका देखा देखिए। गीक्स फॉर गीक्स का देखो, 591 स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के आरटीयू कोटा के वहां पर रजिस्टर्ड है, और इन्होंने जो टॉप पे है इसने 421 प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। सेम विथ हैकर रैंक, यहाँ हमारे बच्चे, कितने बच्चे हैं यहाँ पे, तुम देख लो कि 6 पेज भरे हुए हैं। 6 इसको 100 कर देते हैं, तो 20 बच्चे एक पेज में होंगे, तो 6 इंटू 20 120 बच्चे हो जाएंगे। सेम विथ कोड फोर्सेस हमारे टोटल बच्चे 24, ये सबकी लिस्ट है। कौन कितना जा रहा है तुम किसी को खोल के देखो, ठीक है। ये कोड शेफ की लिस्ट है, रैंक लिस्ट तुम देख सकते हो, ये खुल गई अपने कॉलेज से। खुल जा भाई, खुल जा सिम तब तक लीडर को खुले, मैं तुम्हें और बताता हूँ। इसमें एक हैंड डिस्कॉर्ड ज्वाइन होना है हमसे, डिस्कॉर्ड ज्वाइन पे क्लिक कर दो, डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन हो जाओगे। कॉम्पिटिटिव कोडिंग की एक हैंडबुक होती है, इस पर क्लिक करोगे, ये हैंडबुक आ जाएगी। ये हर एक प्रोग्रामर के पास होती है, डाउनलोड कर लेना, बहुत काम आएगी, ठीक है। लर्निंग रिसोर्स आना है, ये हमारा पूरा गिटहब है, सारी रिसोर्सेज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तुमको जो देखना है, सी प्लस प्लस कैसे सीखनी, रोड मैप टू सी प्लस प्लस ये रहा, रोड मैप टू बिकम जावा कोडर बिल्कुल ये रहा, शॉर्ट ट्रिक्स कुछ ये रही, बड़े बड़े कोडिंग चैलेंजेस कौन से होते हैं वो ये रहे, ठीक है। सब कुछ यहाँ तुम्हें मिल जाएगा। अब मैं तुम्हें मिला देता हूँ, ये हो गया। अच्छा, कोड शेफ ये दिखाना था। कोड शेफ अपने कॉलेज से 153 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड है। भूपत जहांगीर जो तुम्हें बता रहे थे ना पाइथन के, ये टॉप पे है, 4 स्टार कोडर है। धीरे जो तुम जावा के बारे में बता रहे थे, ये 4 स्टार कोडर है, सेकंड रैंक पे अपने कॉलेज से। अभी एडमिन जिन्होंने कोड शेफ द आरटी कोडर स्टार्ट किया था फाइनल ईयर से, वो ये है, और ये भी 4 स्टार है। बाकी बच्चे जो इनके नीचे 3 स्टार है। सेम विथ आगे पीछे बढ़ते जाना, 2 स्टार मिल जाएंगे आपको ऐसे। ये स्टार्स क्या होते हैं, 4 स्टार मतलब बहुत अच्छा, 3 स्टार मतलब थोड़ा कम, मतलब और थोड़ा कम, अच्छा मतलब स्टार्टर है, बिगिनर है अभी, ठीक है। जैसे तुम रैंक 7 पेज पाएंगे तो हमको यहाँ 1 स्टार मिलेंगे सारे, ठीक है। इस तरह से रैंकिंग चलती है, ताकि आपको माइक किसका ऑन है, माइक हेलो पंकज माहेश्वरी, माइक जिसका भी ऑन है माइक ऑफ करो। कूल। सो अब मैं तुम्हें कोड से पार्टी चैप्टर दिखा देता हूँ। ज्वाइन करना है कम्युनिटी, जाओ क्लिक करो। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, इंस्टाग्राम पे आ जाओ। लिंक्डइन, ये रहा लिंक्डइन, ये रहा फेसबुक, ये रहा फेसबुक, ये रहा यूट्यूब। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ये पता है सेशन चल रहा है ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। आफ्टर ये रिकॉर्डिंग ये यहाँ पर आ जाएगा। इससे पहले हमने सेशन लिया था रोड मैप टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, ये सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के लिए था, जो प्रोग्रामिंग सीख करके कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। अभी जैसे तुमने ये सेशन ले लिया, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया, अब तुम इस सेशन को देख करके अब ये सेशन देख सकते हो, तुम्हारे लिए सेशन है पूरा। जाओ इसको देख सकते हो, आराम से विजिट करो, पूरा सेशन रिकॉर्डेड है 1 घंटे का। तुम्हें जहां भी यूजफुल लगता है वहां तुम यूज देखो, बाकी स्किप कर सकते हो। फेसबुक पे कनेक्ट होना है, यहाँ से आ जाओ। कौन आ रहा है भाई, अब पूरी मीटिंग खत्म हो गई, अब आ रहे हो। जहां से जाना है फॉलो करो कोड से चैप्टर को। लिंक्डइन फॉलो करना है, बिल्कुल लिंक्डइन फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। ये वाला लिंक एक्सपायर हो गया, मैं नया लिंक डाल दूंगा। और अगर तुम्हें कोड से चैप्टर में हमारी तरफ से रजिस्टर होना है कॉलेज की तरफ से, अपना कॉलेज जहां से सेलेक्ट करो, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, और ये बिल्कुल आ गया। अपनी कोड शेफ यहाँ पर नाम आ जाएगा, यहाँ नेम डालो, रोल नंबर,
यूजर नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, ग्रेजुएशन ईयर और सबमिट। कोड शेफ पे अपना कॉलेज रजिस्टर्ड है, कोड शेफ आरटीयू चैप्टर के अंडर में, ठीक है। तो तुम जा सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब बहुत बांट लिया मैंने ज्ञान, ये लिंक मैं तुम्हें दे दिया, इस आराम से पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो, उसको आराम से देखो, कोई शून्य, जहां भी डाउट आता है ग्रुप में पूछो, ठीक है। अब 59 लोग हैं हमारे पास में, ये वो लोग हैं जो सुन रहे हैं 1 घंटे से, तो तुम्हारे डाउट्स भी होंगे, तो मैं चुप हो रहा हूँ, डाउट्स पूछो। बॉस मुझे सी आउट और सी इन के बारे में बता दो। सी आउट, सी इन, सी आउट मतलब होता है, सी आउट मतलब कुछ भी तुम उसके अंदर लिखोगे तो वो आउटपुट दे देगा। सी इन मतलब कुछ भी तुम उसके अंदर रखोगे वो अंदर चल जाएगा प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के अंदर सी आउट। ये सी प्लस प्लस के सिंटेक्स है जो तुम्हें हैकर रैंक पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे तुम जाओ यहाँ डालो सी इन एंड सी आउट इन सी प्लस प्लस, डालोगे, गूगल करोगे, ये आ गया। मैंने कहा ना वीक्स फॉर वीक्स हमेशा टॉप पे रहेगा, ये तुम्हारी हेल्प हमेशा करने के लिए तैयार है। तुम कुछ भी गूगल करो ये तुम्हारे लिए तैयार है। सीन क्या है, प्रोग्राम अंदर जाएगा कीबोर्ड से, सी आउट क्या है, स्क्रीन से बाहर आएगा, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, ये प्रोग्राम बना भी रखा है, ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। ये सी आउट करके दिखा रखा है, ये सीन करके दिखा रखा है, ये सी आउट करके दिखा रखा है। कुछ भी तुम्हें जरूरत हो पहले गूगल करो, फिर समझ में नहीं आ रहा सीनियर से पूछो, नहीं ग्रुप में पूछो, और तुम्हें लगता है कि ग्रुप में तुम्हारी हेल्प नहीं हो रही तो तुम पर्सनल मैसेज कर दो। वैसे कभी नहीं होगा ऐसा कि तुम्हारे ग्रुप में हेल्प नहीं होगी। ओके बॉस। हाँ गुड। एनीवन एल्स? ये स्लाइड्स जो अभी तक दिखाई, हाँ बोलो बोलो। बॉस, जब हमने एक बार YouTube से कोई चीज कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी और अब हम उसे हैकर रैंक पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो वहां पे हम कोई भी प्रोग्राम बना सकते हैं या फिर सिर्फ कॉन्टेस्ट सॉल्व करते हैं? नहीं देखो, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमने यूट्यूब से सीख ली, ठीक है, फिर तुम हैकर रैंक पे गए, मैं तुम्हें दिखाता हूँ हैकर रैंक खोल के। तुमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमने यूट्यूब से सीखी तुम वो यहाँ खोल लो। जैसे मैं सी प्लस प्लस खोल लेता हूँ, मैं सी प्लस प्लस यूट्यूब से सीखी, तो मैं गया। अब जब मैं सीख ली तो मैं प्रैक्टिस भी करना चाहूंगा, तो यहाँ क्या है, ये पहले से प्रोग्राम बने हुए हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो बोल रहा है हेलो वर्ल्ड लिख के दिखाओ, और तो जब तुमने सीख लिया कि हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं, तुमको बता भी देगा ये कि देखो सी आउट करते हैं तो यहाँ वैल्यू लिखते हैं, वो वैल्यू प्रिंट हो जाती है, प्रिंट एफ करते हैं तो ऐसा हो जाता है। फिर तुमको बोले ऐसा करके दिखाओ, तुम यहाँ जाते हो, यहाँ प्रोग्राम लिखते हो और सबमिट कर देते हो, रन कर लेते हो पहले चेक करने के लिए, फिर सबमिट कर देते हो। तो यहाँ क्या है, और तुम्हें इसके स्कोर्स मिलते हैं, ठीक है, जैसे इसका स्कोर है हेलो वर्ल्ड के 5 नंबर है, तो 5 नंबर तुमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पहले से बनी हुई है, तुम बस देखते हो, पढ़ते हो, समझते हो और सबमिट करते हो। इससे क्या होता है कि तुम इनके हिसाब से, ये इन्होंने क्या सीक्वेंस बना रखा है, पहले हेलो वर्ल्ड, फिर इनपुट आउटपुट, फिर बेसिक, फिर कंडीशनल, फिर फोर, मतलब धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे इनका लेवल बढ़ता जा रहा है ना, ये मार्क्स बढ़ाते जा रहे हैं। तुम क्या करोगे, मतलब ये इन्होंने एक बेटर प्लेटफॉर्म बना रखा है हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप सीखने का। तो यहाँ से तुम एक सीक्वेंस में सीखते जाओगे। फिर तुम्हें रैंडम प्रोग्राम्स बनाने, तुम यहाँ पर आईडी में जा सकते हो, आईडी में जाओ तो अपने मन से प्रोग्राम चलाओ, भले से कुछ भी लिखो, पर तुम सबमिट वही करोगे जो इसने गिवन टास्क दिया है, तुम्हें देखना है। एक सेकेंड, अगर आपको कोई भी अपना रैंडम प्रोग्राम बनाना है तो उसके लिए हमने आपको जो आईडीज बताई थी, सी प्लस प्लस के लिए VS कोड, पाइचार्म पाइथन के लिए और एक्लिप्स जावा के लिए, तो वहां पर जाओ, वहां पर अपने जो भी रैंडम प्रोग्राम है अपने आप बनाओ, प्रैक्टिस करो, वो बहुत अच्छी जगह है, वो आईडीज बहुत अच्छी हैं उसके लिए। उन आईडीज के लिंक मैं भी डाल दूंगा ग्रुप में कि कैसे तुम्हें वो आईडी सेटअप करनी है अपने लोकल कंप्यूटर में, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके, एनीवन एल्स? देखो CSIT की हो तो कोडिंग तो करनी पड़ेगी। अच्छा, मेरे कहने से नहीं, तुम्हारे कहने से नहीं, कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट है और करने तुम यही आए हो। CS कंप्यूटर साइंस लिए तो मतलब कोडिंग ही करना है। किसी का डाउट? हेलो, हाँ सक्षम बोलो। सक्षम आवाज नहीं आ रही है। सक्षम आवाज नहीं आ रही है, एक काम करो चैट बॉक्स में तुम्हारा क्वेश्चन लिख दो, मैं आंसर कर दूंगा बाय स्पीच। और किसी का डाउट? बॉस हेलो, जिसका भी डाउट हो वो पहले एक बार अपना नाम बताए और फिर उसके बाद में डाउट बताए। हाँ, अभयदीप सिंह।
हाँ बॉस, मुझे ये जाना, जैसे अभी मैंने VS कोड इंस्टॉल किया था, मैंने अभी चैट बॉक्स पे भी लिखा था अपना डाउट। तो वो मेरा जो लैपटॉप है वो थोड़ा 32 बिट है, तो सर वो यूट्यूब पे तो 64 बिट के लिए सब कुछ उन्होंने प्रोसेस बता रखा है। तो जब मैं कंपाइल करने जाता हूँ ना, तो सर वो कंपाइलर एरर आता है, तो वो थोड़ा कैसे सॉल्व करूँ मैं? वो अबे शायद आपने मेन GWE कंपाइलर होता है वो डाउनलोड नहीं करा होगा या तो पहले। नहीं वो कर लिया था, लेकिन उन्होंने, मैंने कोड विथ हैरी करके चैनल है, वहां से मैंने उनका पाथ फॉलो किया था। तो उन्होंने बोला था माई कंप्यूटर्स पे जाके आप इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में पाथ ऐड करना पड़ता हाँ है। वो पाथ सेट कर दिया था। हाँ पाथ सेट, लेकिन मेरे कंप्यूटर में जो पाथ है ही नहीं, मतलब पाथ बता ही नहीं देते। मैंने खुद से नहीं न्यू करके पाथ। और आपने मेन GW कंपाइलर था वो भी डाउनलोड कर लिया था, हाँ वो कर लिया था। उसके बाद भी एरर आ रही है। हाँ निपुण पर्सनली मीट करके समझा देना इनको एक बार, उनके सेटअप कर देना, मतलब ऐसे करके स्क्रीनशॉट करवा के ना। कोड के रिगार्डिंग अभी एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ पूरा सेटअप के लिए, तो वो या तो मैं 1-2 दिन में वीडियो डाल दूंगा या फिर मैं आपको पर्सनली बता दूंगा अभी। ठीक है, ओके या लोकेश कैरी ऑन। हाँ भाई, जय का शुभांशु का डाउट था शायद, शुभांशु कैरी ऑन। दूसरा है हिमांशु शर्मा, और मुझे ये पूछना था कि टेक्नाइट्स के क्या है और कैसे काम करता है क्या चीज? टेक्नाइट्स टेक्नाइट्स के बारे में बता दूं तुमको। टेक्नाइट्स 2 साल पुरानी, मतलब 2018 में शुरू हुई थी, और वो लोग वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट और प्रोजेक्ट्स जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे गूगल समर ऑफ कोड जैसी चीजें, ओपन सोर्स में जितनी भी चीजें होती है, वेब बनाना, एंड्रॉइड ऐप बनाना, और तुम्हारे हो गए इंटर्नशिप्स की बात हो गई, कोई वर्कशॉप्स करवाना, कोई सेमिनार करवाना, ये सब टेक्नाइट्स के अंडर होता है। डाटी कोडर्स कोडिंग करवाते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग होते हैं, कॉन्टेस्ट होते हैं, सेशंस होते हैं सिर्फ। बाकी तुम्हें एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है, तुम्हें वेब डेवलपमेंट में जाना है, तो तुम टेक्नाइट्स ज्वाइन कर सकते हो। सबके लिए ये टेक्नाइट्स बिल्कुल ज्वाइन करो। टेक्नाइट्स बहुत अच्छी जगह है, तुमको वेब डेवलपमेंट सिखाएंगे, एंड्रॉइड डेवलपमेंट सिखाएंगे, गेम बनाना है तो गेमिंग कम्युनिटी भी अपने पास कॉलेज में, वो भी तुम ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड में, लिंक्स में भेज दूंगा। थैंक यू बॉस। बॉस बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर, देखो ये जो सेशन है ना, ये प्रोग्रामिंग रोड मैप टू प्रोग्रामिंग है। बाकी तुम्हारा बिटवाइज ऑपरेटर है तो तुम मुझसे पर्सनली मैसेज कर देना या ग्रुप में डाल देना, वो पूरा एकदम ऐसे कैसे मैं सीरीज भेज दूंगा या बता दूंगा पर्सनली, है ना। ओके बॉस। जय खंडेलवाल, आपका डाउट था कुछ? सर वो बॉस हो गया था, वो जो अभयदीप पूछ रहा था ना। अच्छा तो उसके लिए सर क्या एक कोड वीडियो बना रखी उसने, कोड वीडियो ने GCC इज नॉट रिकॉग्नाइज करके। तो सर उससे सोल्व हो जाती है प्रॉब्लम, सर यही बता था। अच्छा बता रहे थे तुम? यस सर, वो हो गया था, मेरे साथ भी हुआ था सर। तो अभयदीप देख लो क्या बता रहे, जैसे कम्युनिकेट कर लो, कुछ अगर तुम्हारी हेल्प हो सके तो। वो बॉस, वो एक्चुअली मैंने वो वीडियो भी देख ली है, लेकिन एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में उन्होंने बताया कि आपको पाथ पहले से क्रिएट हुआ मिलेगा, लेकिन मेरे लैपटॉप में वो पाथ क्रिएट हुआ नहीं मिला मुझे। चलो कोई बात नहीं, जय आपकी हेल्प कर देगा ग्रुप में, या फिर ठीक है। मैं आप पर्सनल मैसेज कर देना, फिर निपुण वीडियो बना रहे हैं तो वो करेंगे आपकी हेल्प, ठीक है। और किसी का डाउट, या ग्रुप में तो बड़े डाउट पूछते हो कि आई वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, आई वांट टू लर्न प्रोग्रामिंग, आई एम ए बिगिनर, कहां से सीखूं कहां से सीखूं। अब नहीं आ रहे तुम्हारे डाउट, पूछ लो भाई, लाइव सेशन है। सेशन को एक इंटरेक्टिव सेशन बनाया करो, यहाँ से हम लोग इंटरेक्ट कर पाएंगे देखो सबसे ज्यादा। तो देखो 1 घंटा पूरा हो चुका है, सेशन का टाइम खत्म हो चुका है, बस तो अब तुम्हारे डाउट्स ले रहे हैं। तुम्हारे डाउट जैसे पूरे हो जाएंगे सेशन एंड कर देंगे। कुछ भी जानना हो, कौन आरटी कोडर से, कौन कोड शेफ आरटी चैप्टर है, क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोडिंग कहाँ से कॉलेज के करूं। बारे में पूछना हो, अपने बारे में बताना हो, वो भी बता सकते हो। अच्छा रुक जाओ, देखो 50 लोगों, हमें तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ एक सेकंड। हमारी कोर टीम बन चुकी 4 लोगों के साथ में, एग्जीक्यूटिव टीम बन चुकी 8 लोगों के साथ में। अब हम वॉलंटियर टीम बनाएंगे, दिसंबर के एंड में 8 लोग चूज करेंगे, हर एक बैच से एक बच्चा, हर एक बैच से ABCDEFGH जो तुम्हारे बैच है फर्स्ट ईयर में, हर एक बैच से एक बच्चा चूज करेंगे। तो अब कौन होगा वो एक बच्चा, उसकी मैं तुम्हें बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन जो तुम्हारे आज 10 तारीख है या फिर कितने 6 तारीख है, तो तुम्हारे पास 25 दिन है, तुम आराम से सीखो। क्या सीखना तुम्हें, कि तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो, हैकर रैंक पे 5 स्टार होनी चाहिए तुम्हारे पास। और उसके बाद में
जब हैकर फाइट स्टार्ट हो जाए तो एक कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर लेना. दिस इज द सफिशिएंट रिक्वायरमेंट टू बी अ वॉलंटियर फ्रॉम योर बैच. उसके बाद में मान लो कि 2-3 बच्चे जिनकी सेम चीजें हैं सेशन के अंदर, मतलब जिन्होंने अप्लाई किया एक बैच से, तो कौन सी ऐसी चीज होगी जो फैक्टर डिवाइड करेगी? वो है को अगर तुम्हें एक्स्ट्रा स्किल्स आती है, जैसे किसी को वीडियो एडिटिंग आती है, किसी को ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, तो वो एक्स्ट्रा स्किल्स वहां डिफरेंशिएट करने में बेटर करेगी कि 2 बच्चे के पास सेम स्किल है, तो वो एक ऐसी स्किल होगी जो तुमको पीछे रख सकती है मे बी. तो अगर जिसके पास, जिसको वीडियो एडिटिंग या फिर पोस्टर मेकिंग आता होगा, वो भी आ सकता है. सो ये लास्ट में होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वो कोडिंग आनी चाहिए उसको. दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट. हम उसको लेंगे. तुम्हारे पास इनफ दिन है, 25 दिन है. 25 दिन में मतलब 15 दिन में लैंग्वेज सीखो, 10 दिन में 5 स्टार कर लो हैकर रैंक के. इनफ टाइम. ठीक है. तो गाइस देख लो, वॉलंटियर बनना है तो. अच्छा, वॉलंटियर बनने का फायदा क्या होता है? सर्टिफिकेट तो देखो कोई बड़ी बात नहीं होती, मिल जाता है. 1 साल बाद सर्टिफिकेट मिलेगा. दूसरी चीज, लीड करने का मौका मिलेगा अपनी क्लास को. अब लीडर बनते हो तो सीनियर से इंटरेक्ट होते हो, टीचर से इंटरेक्ट होते हो, एक स्किल आती है, एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करते हो तुम अपने आप में. किसी को कुछ जानना हो तो पूछे. 48 लोग बैठे हैं. बॉस कोई सी भी लैंग्वेज है मतलब? हाँ, कोई सी भी लैंग्वेज है, डोंट मैटर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होनी चाहिए. हिंदी, ऐसा नहीं कि साहब इंग्लिश आती है, मुझे फ्रेंच आती है तो ले लो. नहीं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, ऐसा करके कुछ भी यस बॉस. चल चलेगा. जय, माइक ऑन किया था आपने? माइक बोलो कुछ. बॉस होगी तो सी को सर इंक्लूड करें कि नहीं करें, वही पूछ रहे बिल्कुल. सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई सी होनी चाहिए. हैकर रैंक पे 5 स्टार हो, कोड सेट पे 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस में फॉलो कर लो, और बाकी तुम एक कॉन्टेस्ट में अगर पार्टिसिपेट कर सकते हो कर लो. बाकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट होगी हायर करने की. अगर आप स्टार्ट करोगे तो सी प्लस प्लस पे चले जाओ पहले, फिर आप सी सीख लेना. बिकॉज सी प्लस प्लस बहुत आगे बहुत ज्यादा कोडर्स यूज करते हैं उसको, इसलिए. किसी का डाउट है तो सेशन 15 मिनट हो चुके हैं सेशन को खत्म हुए हुए. वैसे तो ऑफिशियली तो 5:30 तक है. बाकी जैसे ही तुम्हारे डाउट्स खत्म होंगे सेशन बंद. डाउट्स आर वेलकम. बॉस ये डेका क्या होता है? डेका के अलग से मार्क्स होते हैं क्या? डेका होता है, क्या होता है डेका? डेका होता है मतलब तुम कैरिकुलम होते हैं. बताओ निपुण, बताओ. डेका में क्या होता है, हमें अपने सर्टिफिकेट, जो भी आपने किसी इवेंट में पार्ट लिया है तो उसके आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं. तो वही है आपको कि कितने एक्टिविटीज में आप इंक्लूड हो, इसलिए डेका का है. वैसे मार्क्स इसलिए रखे गए कि आप उसमें उससे क्या है, ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज में पार्ट ले सको. तो डेका का सिर्फ पर्पस यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाओ अपनी. बाकी डेका से सिर्फ मार्क्स मिलते हैं और कुछ नहीं है. आपको सर्टिफिकेट इकट्ठे करने होते हैं. लेकिन सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं कि कहीं से भी उठा लिया. कोई अच्छी जगह से अपना क्या इन्वॉल्वमेंट दिखाओ और वहां से. और डेका का ज्यादा रोल नहीं है इतना, मतलब सोचना मत कि सर्टिफिकेट इकट्ठे करने हैं. तो वहां पे नंबर मिल जाता है, ऐसे कोई बात नहीं है. मार्क्स के लिए मत जाना, बाकी अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना हर चीज में. ठीक है. और डेका में कल्चरल एक्टिविटी के अलग से मार्क्स होते हैं? कल्चरल एक्टिविटीज के कोई मार्क्स ऐसे अलग से नहीं होते. बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं वैसे डेका का ज्यादा. अरे कुछ है नहीं, ये दिक्कत नहीं की ना. आपको जब जाओगे ना लास्ट में तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी क्या है वैल्यू. नॉर्मली है, इसकी ज्यादा है नहीं. बस आपको सर्टिफिकेट 1-2 ही बस है ना होते हैं बस. और हैकर रैंक प्रोवाइड भी करता है. आई थिंक आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी तो आप अपना टेस्ट दे सकते हो हैकर रैंक का, और वो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड भी कर देगा. मैं बस. हाँ बिल्कुल, हैकर रैंक सर्टिफिकेट देता है. मैं दिखाता हूँ. वेट, ये देखो ये रहा. यहाँ आ गए तुम. यहाँ पर आकर के स्टैंड आउट योर क्राउड, योर स्किल्स. ये कहाँ देता है? ये रहा, गेट सर्टिफाइड, गेट योर सर्टिफाइड स्किल्स. ठीक है, यहाँ गए, गेट सर्टिफाइड पे क्लिक किया, वेरीफाई, टेक हैकर रैंक स्किल टेस्ट. तो तुम ले लोगे तो टेस्ट दे लेना. ये वाला 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, 2 क्वेश्चन होंगे, बढ़िया सर्टिफिकेट मिलेगा. अरे सर्टिफिकेट की टेंशन मत लो. सर्टिफिकेट आपको बहुत दिला देंगे हम लोग, उसकी टेंशन मत लो. इतने कॉन्टेस्ट होते हैं, सर्टिफिकेट सब में मिलता है. थैंक यू बॉस. देखो दिखाता हूँ गूगल कॉम्पिटिशंस. देखो गूगल के कॉम्पिटिशंस होंगे. अपन चलेंगे जनवरी में, मतलब चलेंगे इन द सेंस यहीं से बैठ के देंगे कॉन्टेस्ट.
43 लोग हैं क्या? चलो तुम तो ले लो क्या, खुल जा। गूगल क्या है, कॉन्टेस्ट करवाते हैं कि जैसे हैकर रैंक पे कोडशेप पे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना, ऐसे गूगल करवाता है। तो जैसे तुम पार्टिसिपेट करोगे तुरंत सर्टिफिकेट, अगर तुमने अच्छा किया तो नेक्स्ट लेवल के लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। हैश कोड होता है गूगल का, एक साल में एक ही बार होता है, ये फरवरी में होगा इस साल, जनवरी में से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कोड जैम होगा फरवरी में, रजिस्ट्रेशन मार्च में होगा ये, तो फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। किक स्टार्ट हर महीने होता है, इस साल का तो खत्म हो गया किक स्टार्ट के। अच्छा मैं दिखाता हूँ मेरे सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट की टेंशन क्यों ले रहे हो तुम? मेरे कंपटीशन हिस्ट्री नहीं दिखा रहा मेरी, भाई क्या कर रहे हैं? वेट, मेरा सर्टिफिकेट कहाँ है? अच्छा ये रहा व्यू सर्टिफिकेट्स, ये रहे मेरे सर्टिफिकेट। मैंने बी राउंड पार्ट लिया, सी राउंड पार्ट लिया, डी राउंड पार्ट लिया, ई राउंड पार्ट लिया, एफ जी एच, सबका सर्टिफिकेट मिल गया मुझे। सर्टिफिकेट का क्या करोगे? ये देखो, ये किस स्टार्ट का है, कोड जैम में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था तो मुझे रेड कलर का मिला सर्टिफिकेट, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, क्वालिफाइड राउंड 7 पॉइंट्स ओनली। इस बार अच्छा करेंगे, टेंशन मतलब, उस टाइम जानते नहीं थे यार इतना, तो सर्टिफिकेट्स की टेंशन छोड़ दो, तुम बस कोडिंग करो, सर्टिफिकेट बहुत आएंगे। गूगल करवाता है ऐसे, फेसबुक करवाता है, फेसबुक का हैकर कब होता है? और कोई? बस भाई 20 मिनट एक्स्ट्रा हो गया, खत्म करो, बताओ क्या करना है। चलो थैंक यू गाइस, डाउट है?